Students, today we are going to continue our exercise 2.5 of chapter 2 polynomials. Now as you can see, this is our question number 6. So write the following cubes in expanded form, and the question comprises the 4 parts, and I am going to do part first and part fourth for you. So students, as you can see, we have to write our cubes in the expanded form. आपको given है 2x plus 1 whole cube, and similarly part 4 में है x minus 2 upon 3y whole cube, and हम लोग को इन्हें expanded करके लिखना है. आपको पता है whole cube वाली क्या होती है, हम लोग को identities होती हैं. So we are going to use our identities to just expand our answers. So क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखिए हम लोग लिखेंगे we know the identities of cube. आपको फर्स्ट एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में आपको बताया गया था आइडेंटिटीज हमें कौन कौन सी यूज करनी है. सो यू नो दैट a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab in bracket a plus b. So I am just going to write it over here, and we are going to compare our question with our identity. So as you can see over here, we are having the value of a. a की वैल्यू कितनी है 2x and b की वैल्यू है 1. So I am going to write here my question. 2x plus 1 whole cube will be equivalent to a cube, that means 2x का cube plus b cube, that means 1 का cube plus 3 into 2x into 1, and in bracket a plus b, that means 2x plus 1. Now simply I am going to solve the cube. So 2 का क्यूब होता है बेटा 8, and x क्यूब ऑलरेडी है तो उसे भी लिखेंगे, प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, आपको पता है. 3 2 जा 6, 6 into 1 6x हम लोग का आ जाएगा, और जो ब्रैकेट में है वो क्या है 2x plus 1. अब हम लोग को ये ब्रैकेट भी फिर से क्या करना है, एक्सपेंड करना है. सो अगेन 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 2 जा 12, एंड x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, बिकॉज यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 6x when multiplied by 1 going to give us 6x. So 8x cube plus 1 plus 12x square plus 6x is our answer, which is in the expanded form of 2x plus 1 whole cube. एंड बेटा आप चाहते हैं तो इनको डिसेंडिंग पावर में भी लगा सकते हैं. x की डिसेंडिंग पावर्स का मतलब है सबसे पहले हम लोग x का क्यूब पुट करेंगे, आफ्टर दैट हम x का स्क्वायर पुट करने वाले हैं 12x स्क्वायर, आफ्टर दैट हम लोग सिंपल 6x, एंड आफ्टर दैट प्लस 1. सो दिस विल बी आवर गिवन आंसर इन आवर एनसीईआरटी बुक. नाउ इसी तरीके से हम लोग पार्ट 4 करते हैं बेटा. So we know in that case, as you can see, we are having identity a minus b whole cube, and a minus b whole cube क्या होता है students? a minus b whole cube is equivalent to a cube minus b cube minus 3ab in bracket a minus b. So we are just going to compare our question with our identity x minus 2 upon 3y whole cube. As you can see, the value of a is x and the value of b is 2 upon 3y. Okay, so I'm just going to put in the right hand side of my identity. So a की प्लेस में हम पुट करेंगे x, so x का क्यूब, माइनस b की प्लेस में पुट करना आपको 2 upon 3y, so 2 upon 3y का क्यूब, माइनस 3 into a, that means x, into b, that means 2 upon 3y, and in bracket a minus b, that means x minus 2 upon 3y. Now simply we are just going to open our brackets. So x cube minus 2 का क्यूब होता है बेटा 8, and 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, so 27 and then y cube minus, आप स्टूडेंट्स देखिए ये वाले 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमारे पास बचा हुआ है 2xy, और ब्रैकेट में तो है ऑलरेडी x minus 2 upon 3y. Again we are going to open this bracket. So x cube minus 8 upon 27y cube minus 2xy when multiplied by x going to give us 2x square y, and minus minus is plus.
Again 2xy when multiplied by 2 upon 3y, it is going to give us 4 upon 3xy square. So this will be our answer, that is x cube minus 8 upon 27y cube minus 2x square y plus 4 upon 3xy square. In the same way, you have to do part second and part third on your own. Now we are moving to question number 7. Now this is our question number 7. Evaluate the following using suitable identities. The question comprises 3 parts, and the part first is 99 whole cube. So it is given to us. So as you can see, I have splitted 99 in the most suitable way, that is 100 minus 1 whole cube. So now we can use our identity like a minus b whole cube. So I am going to write it over here using a minus b whole cube, which is equal to a cube minus b cube minus 3ab in bracket a minus b. And now I am simply going to compare my question with my identity. So the value of a is going to be 100 and the value of b is 1 whole cube is equal to a cube, that means 100 ka cube, minus b cube, that means 1 cube, minus 3 into a, that means 100, b is 1, and again 100 minus 1. So simply we are just going to open our brackets. The cube of 100 will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now minus cube of 1 is 1 again. 3 when multiplied by 100 and when multiplied by 1 going to give us 300. And similarly 100 minus 1 is 99. Again I am going to solve this bracket. 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus 1. 3 when multiplied by 99, it will be equivalent to 29700. 29700. And you when going to solve it, students, you are going to get 970299. So this is our answer. You can check your answer by simply multiplying 99 3 times. Okay. In the similar way, in the third part, we are having 998 whole cube. So as you can see, you can split 998 in 1000 minus 2. And in that case, A is 1000 and B is 2. And similarly, in the second part, we are having 102 whole cube. And again, in this part, you are going to split your answer as 100 plus 2. And for that, the value of A is 100 and the value of B is 2 again. Okay, now we are moving to question number 8. Now students, our question number 8 is factorize each of the following. The question comprises 5 parts and this one is the first part. So students, आपको मैंने जब आइडेंटिटी बताई थी a plus b and a minus b के होल क्यूब की, तो वो थी a plus b का होल क्यूब. मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इट इज a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a plus b. सो अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस आइडेंटिटी को और भी ज्यादा हम ओपन कर सकते हैं, हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं. वी कैन राइट इट एज a क्यूब प्लस b क्यूब plus 3a square b, because when 3ab multiplied by a, it will give us 3a square b, and similarly plus 3ab square, because when 3ab multiplied by b, it will give us 3ab square. And similarly students, जो a minus b के होल क्यूब होते हैं वो क्या होते हैं? a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस, एंड इसे जब हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा a क्यूब minus b cube minus 3a square b, but when minus 3ab multiplied by minus b, it's going to give us plus 3ab square. So students, आप देख रहे हैं यहाँ कि हमारी जो आइडेंटिटी थी a plus b के होल क्यूब को, उसे हम इस तरीके से a क्यूब plus b क्यूब plus 3a square b plus 3ab square. सिमिलरली a माइनस b के होल क्यूब को हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो माइनस वाली आइडेंटिटी है उसमें लास्ट टर्म जो होती है वो किसकी होती है? प्लस की होती है. नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन, एंड एज यू कैन सी ओवर हियर, अगर आप कंपेयर करें इस आइडेंटिटी को, तो ये तो a क्यूब है,
ये बी क्यूब है, फिर इसमें ये टर्म आ रही है ए स्क्वायर बी, और आपको पता है ए स्क्वायर बी वाली टर्म किस में आती है, हम लोग की ए प्लस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी में आती है। एंड सिमिलरली लास्ट टर्म आप देख रहे हैं ए बी स्क्वायर है, तो वो हम लोग की भी इसी आइडेंटिटी में आपकी प्लेस होती है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू मेक अवर क्वेश्चन एज अवर आइडेंटिटी फर्स्ट। तो हम इसे आइडेंटिकल करेंगे अपनी आइडेंटिटी से, जैसे कि वी आर गोइंग टू राइट 8a क्यूब एज 2a होल क्यूब। We can write, because 8 is the cube of 2, so I'm going to write 8a cube as 2a whole cube plus b का क्यूब प्लस, आपको पता है नेक्स्ट जो होती है हमारे आइडेंटिटी में टर्म क्या होती है, 3a स्क्वायर b। So I'm going to write it over here, 3a square is a is 2a, so I'm going to write 2a का whole square, a square and then b is b itself. Now plus 3ab square, and a is here 2a and b is b itself, and it is 3ab square, so I'm going to write over here square. Now you can see that the value of each term is same. 2a whole cube will be equivalent to 8a cube, b cube तो है b cube, यहाँ इस वाली आइडेंटिटी को मिलाइए, 2 2 जा 4 होगा स्टूडेंट्स, and 4 when multiply by 3 is 12, and then a square b plus 3 2 जा 6 6a b स्क्वायर। तो ये हम लोग के आपकी जो टर्म्स है उसमें कहीं भी आपकी वैल्यू में कहीं भी चेंजेस नहीं आए हैं। एंड अब आपको पता है कि ये जो आइडेंटिटी है वो किस चीज की है, हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग जो हमारी आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड है, हम उससे पहले लिख रहे हैं इस बार a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू a प्लस b होल। तो आपने आइडेंटिटी यूज कर ली है, और आप हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल हो रहा है हमारी आइडेंटिटी से, तो हम इसके राइट हैंड साइड वाले पार्ट को लिखने वाले हैं a प्लस बी होल क्यूब, एंड a इज इक्वल टू 2a, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर 2a प्लस b इज b इटसेल्फ, तो हम b लिख देंगे, इसका होल क्यूब लिखना है हम लोग को। एंड आपको पता है किसी का होल क्यूब होता है तो हम उसे 3 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज 2a प्लस b, then again 2a plus b, and then again 2a plus b. So as you can see over here in the question we are having degree 3. So the polynomial is going to have 3 factors. So the factors of this polynomial is 2a plus b, 2a plus b, 2a plus b, which are the 3 factors of the cubic polynomial. Now I am going to do the another part of this question. Now this, as you can see, is the part 5th of the question number 8, and in here we are having 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 upon 2p square plus 1 upon 4p. So I can write 27 as 27p cube as 3, because the cube of 3 is 27 and p whole cube. It will become 27p cube minus 216, स्टूडेंट्स 216 जो होता है वो होता है 6 का क्यूब, 6 6 are 36, and when 36 multiply by 6 it will be equal to 216. So I'm going to write it over here 1 upon 6 whole cube. So this would be our b. So as you can see, it is the a cube minus b cube minus 3 into a is 3p, into b, that is 1 upon 6p, 6 sorry, and then plus, because आपको बताया था माइनस वाली जो आइडेंटिटी होती है उसमें सारे टर्म्स तो माइनस की होती है, जो लास्ट वाली टर्म है वो पॉजिटिव होती है, and it is 3, I have to write over here square because it is 3a square b, and then plus 3ab square, so for a I am going to write 3p, and b square is 1 upon 6 whole square, is it? Now simply we are just going to use our identity, using identity it is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square, and it is equal to a minus b whole cube. So I am just simply going to put the value of a and b in the right hand side of the identity, and a is, as you know, it is 3p minus b is 1 upon 6 whole cube.
एंड अगेन स्टूडेंट्स आपको इसको भी 3 पार्ट्स में अपने डिफरेंट फैक्टर्स में इसको करके लिखना है. Okay, 3p minus 1 upon 6, then again 3p minus 1 upon 6 and then again 3p minus 1 upon 6. Okay students, अगर आपको मैच करना है कि आपका आंसर रॉन्ग तो नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ पे जब आप कैंसिल करेंगे 3 2 जो 6 कैंसिल होगा ये, so 3 3 9 upon 2 p स्क्वायर. देखिए ये टर्म बन रही है. एंड सिमिलरली जो आपका ये 3 है ये 2 जो कैंसिल होगा, 3 2 जो 6 होता है एंड अगेन ये वाला 3 एक और 6 से कैंसिल होगा 2 जो, तो नीचे जो आने वाला है 4 आने वाला है एंड दोनों 3 आपके कैंसिल हो चुके हैं. सो 1/4 p ही हम लोग का टर्म आपकी फोर्थ वाली बन जाएगी. सो द आंसर ऑफ द फिफ्थ पार्ट इज 3p minus 1 upon 6, 3p minus 1 upon 6 and 3p minus 1 upon 6, which are the 3 factors of the given polynomial. Now we are moving to our next question, question number 9. The question number 9 is verify, and it again comprises 2 parts, or I can say it is containing 2 different algebraic identities, which I have told you that these identities are not included in our NCERT book, but I am going to write it over here because we have to prove them in our questions. So question number 9 is completely identity based. Students, आइडेंटिटी बेस्ड में इसलिए बोल रही हूँ कि ये खुद ही एक आइडेंटिटी है, बिकॉज आपको मैंने लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी एंड देन a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर. सो हमें इसी आइडेंटिटी को प्रूव करना है एंड साथ में आपको लर्न है ऑलरेडी, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है स्टूडेंट्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. एंड हमें करना है इसमें वेरीफाई. आपको पहले से बताया गया है कि जब हमें वेरीफाई करना होता है दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव अवर लेफ्ट हैंड साइड इक्वलेंट टू द राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सॉल्व है स्टूडेंट, इसको हम और क्या सॉल्व करें. सो सिंपली वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर राइट हैंड साइड. आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर RHS, and RHS is x plus y x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. अब ये जो बन गया हम लोग का क्या है बेटा, एक बाइनोमियल आपको दिख रहा है जिसमें 2 टर्म है और एक ट्राइनोमियल है. इनको क्या करना है, सिंपली हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है. और आपको सिखाया गया हम लोग किस तरीके से टर्म्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं. सो आपके पास यहाँ बाइनोमियल में जो फर्स्ट टर्म है, हम पहले इस फर्स्ट टर्म का इस कंप्लीट जो ट्राइनोमियल की 3 टर्म्स है इनसे मल्टीप्लाई करेंगे. देन अगेन जो बाइनोमियल की सेकंड टर्म है इसका मल्टीप्लाई हम ट्राइनोमियल की 3 टर्म्स से करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई अवर एक्स विद द ट्राइनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. देन आई एम गोइंग टू पुट द साइन ओवर हियर. यहाँ पे प्लस का साइन है तो मैं यहाँ प्लस यहाँ लिख दूंगी. देन हम लोग क्या करेंगे, अपनी सेकंड टर्म जो बाइनोमियल की है दैट इज वाई, उसको अपने ट्राइनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब आपको आता है पहले x का जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम x क्यूब. सिमिलरली जब हम इस x का मल्टीप्लाई करेंगे x वाई से तो ये बन जाएगा x स्क्वायर y. एंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x का x वाई स्क्वायर से तो ये हो जाएगा x वाई स्क्वायर प्लस सिमिलरली इट विल बी y x स्क्वायर और आई कैन राइट इट एज x स्क्वायर y. देन प्लस माइनस इज माइनस x y स्क्वायर प्लस प्लस इज प्लस y. अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ आइडेंटिटीज कुछ टर्म्स अगर कैंसिल हो रही है तो उन्हें कैंसिल कर देते हैं. देखिए एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ जो हमारा एक्सेस की 2 हम लोग की डिग्री है एंड वाई हमारा सिंपल 1 है. तो ऐसी टर्म है जिसमें एक्स की 2 डिग्री है एंड वाई सिंगल है, वो ये टर्म है. तो आप देख रहे हैं ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, ये माइनस का है और ये प्लस का, ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल. बिकॉज स्टूडेंट्स आपको पता है एक्स वाई या वाई एक्स सिमिलर होता है. तो सिमिलरली हम लोग का एक्स स्क्वायर वाई एंड वाई एक्स स्क्वायर सेम है और अगर साइन उनके डिफरेंट है तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं. सिमिलरली एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल. तो क्या टर्म हमारे पास बची, एक है एक्स क्यूब और एक है प्लस वाई क्यूब. तो एज यू कैन सी RHS विच इज एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. इसे जब हमने सॉल्व किया तो ये हम लोग का बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज अवर LHS. So I can write it over here which is equivalent to LHS. Next time लिखेंगे therefore LHS is equal to RHS, hence verified. And in the similar way students you have to do it second parts and we are going to continue over this exercise 2.5 in our next video. Till then take care. Thank you.